Imran Khan and I welcome all the respected सारे लोग आ गए हैं शायद specific guests and wide spectrum of viewers who are watching us online. Thank you so much. देखिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये शाम बड़ी खूबसूरत होने वाली है और आप लोग इतने सारे लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और इसलिए भी और बोलना चाहूँगा इस बारे में क्योंकि देखिए आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम क्या हैं. हम कुछ वी आर नथिंग जर्रा हैं. तो एक बार जोरदार तालियां भाई हम सब के लिए. बिग हैंड बिग हैंड. And you know, it's indeed a great moment of joy this evening. We are going to launch our label MFA Records and our beautiful song Neem, presented by Mr. Anurag Sinha and MFA Records. Starring beautiful couple Manmeet and Jatin, right? Sung by supremely talented Yasir Desai in his enchanting voice and directed by Mr. Harry Khalsa, composed by Shivram Parmasa. So thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. So moving on. देखिए ये गाना already बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और सच बताऊं this gonna steal your hearts of millions or trillions of people. क्या कहते हैं आप लोग? Big hand, big hand. Definitely. So वक्त का थोड़ा तकाजा है और हम लोग already बहुत लेट हो गए हैं और ताज वालों ने 2 घंटे के लिए वक्त दिया था, राइट? तो फटाफट करते हैं. But before that I have a little brief about MFA Records. जो हमारे प्रोड्यूसर ने बोला है बोलने के लिए. So MFA Record is not just another music label. It's a movement and revolution in the music industry. Our mission is clear: to redefine the landscape of music by celebrating diversity and nurturing creativity. We proudly stand at the intersection of renowned and independent artists, harnessing their unique talents to push the boundaries of creativity. Mr. Anurag Sinha, the visionary behind MFA Records and the driving force behind our harmonious melodies, and accomplished singer with a track record spanning several years. His work has graced esteemed banners such as T-Series, MTV, and many more. Anurag's unwavering vision centers on creating a platform for independent artists, facilitating their journey to larger audiences, and smoothing the path for aspiring actors, talents, and given his own experiences. Driving MFA Records project from inception to fruition is Swapnil Shaban, a master of project management, integration, and strategic leadership. At MFA Records, he deftly navigates projects, ensuring flawless execution with established timelines and budgets. In the world of MFA Records, music not just heard, it's felt, experienced, and cherished. With Neem, it's just a start, and many more musical wonders are on the zone. Thank you. Big hand for MFA. मूविंग ऑन. अब वक्त है थोड़ा इंट्रोडक्शन का. कुछ लोग यहाँ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं. तो देखिए अब सबसे ज्यादा जिसने पैसे दिए हैं भाई, जो प्रोड्यूसर ने दिए हैं, राइट, तो उनके बारे में कहना बड़ा जरूरी है. एक कहावत है कि किसी शख्स की अगर बात करनी हो तो उसकी तरबियत से ये पता लगा जा सकता है कि उसकी परवरिश हुई है या बस उसे पाला गया, राइट. और ये चीज बहुत अच्छी फिट बैठती है अनुराग पे, बिकॉज कमिंग फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली और यहाँ तक आना और बहुत कम वक्त में यहाँ तक पहुँचना बड़ी कामयाबी वाली बात है. बिग हैंड फॉर अनुराग. सो मिस्टर अनुराग and the producer of MFA Records, Mr. Anurag Sinha, whose musical intuition coupled with a keen business sense transforms MFA Records into a center of captivating rhythms and unforgettable performances. Big hand for Mr. Anurag Sinha. अब दूसरा इंट्रोडक्शन किसी चीज की मोहताज नहीं है किसी, क्योंकि उनके इतने लाखों करोड़ों फैन हैं यार, राइट. उनमें से मैं भी एक फैन हूँ और उनकी आवाज का मैं भी बड़ा मुरीद रहा हूँ. सो उन्होंने सैकड़ों गाने गाए हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने गाए हैं, बड़े सिंगर सोलोज दिए हैं, बड़े सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और उनकी गानों में हमारा भी गाना शुमार है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर यासिर देसाई साहब. ही इज नॉट हियर, ही इज ऑन द वे, बट बोलना जरूरी है. और इस गाने में 2 खूबसूरत चेहरे हैं. द वन ओनली मनमीत कौर. इसने मुझे बोला भाई मेरा मनप्रीत नाम नहीं मनमीत है. सबके मन को जीतने वाले द डिवा, द ब्यूटी, मनमीत कौर. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मनमीत. Very talented, the hot cake. Thank you so much for coming over here. So moving on, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ और मैं चाहूँगा कि अनुराग अब यहाँ पे आप आइए और नेक्स्ट हम अपना वो जो भी चीज़ें हैं AV देखेंगे. Right, can I have the AV please?
Come. You have to say something about MFA and the name. Hi everyone. Thanks a lot for coming here. MFA Records के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो I am also an artist. तो MFA Records stands for Music for All Records. तो basically ये सारे आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सिर्फ ना आर्टिस्ट का सिर्फ ऑडियो या विजुअल ही नहीं, उनको हम थोड़ा सा मतलब ओवरऑल 360 डिग्री नर्चर भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑडियो एज वेल एज विजुअल. आपका टैलेंट देखते हैं अगर आप इफ यू आर अ रियली टैलेंटेड गाय, इफ यू आर अ रियली टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो आई माय टीम puts you on board and will definitely try to put you and your talent together in the market and आपके overall जितने भी A to Z जितने भी aspects of development होते हैं उसको we are already targeting upon right now and जितने भी अच्छे artists हैं we are already welcoming them. तो MFA का सिर्फ बेसिकली यही है कि हम सिर्फ वीडियोस या उनके टैलेंट्स को पुट क्रॉस नहीं करते, उनके टैलेंट्स को इन टर्म्स ऑफ ऑडियो विजुअल इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इट माइट बी एनीथिंग, हम लोग उनको पूरा ओवरऑल 360 डिग्री तरीके से नर्चर कर रहे हैं एंड देन उनका एक प्रोडक्ट जो है हम लोग उनको मार्केट में प्लेस कर रहे हैं. दैट्स इट. टॉकिंग अबाउट नीम, मैंने जब ये पहली बार गाना सुना, इस गाने को बहुत अच्छे से कंपोज, बहुत प्यारे तरीके से कंपोज किया हमारे शिवराम सर ने. इनका मैं जब शिवराम सर से जब मिला तो जब मैंने गाना सुना तो एक होता है गाने में एक बहुत एक्साइटमेंट और एक क्लिक होती है कि यार ये गाना बहुत अच्छा है. तो मैंने शिवराम सर को एक ही चीज़ बोला, सर मुझे ये गाना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि आई वॉन्ट रिवील द नेम ऑफ द मूवी एज वेल, बट ये आई गेस सर कुछ किसी मूवी में भी गदर 2 में, वाह गदर 2 में गाना गया था, बट मैंने बोला सर मुझे ये गाना प्लीज चाहिए, अगर पॉसिबल है तो गिव मी दिस सॉन्ग, आई विल मेक श्योर कि ये मार्केट में एट इट्स बेस्ट प्लेस हो. तब शिवराम सर ने मेरे कैपेबिलिटी या मेरे जो भी उसको बोलेंगे उन्होंने मुझे पहचाना, मेरे विजन को पहचाना और उन्होंने फाइनली मुझे गाना दिया. बट इस गाने को क्योंकि बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है ऑब्वियसली, तो हमने ये गाना अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिनट्स में मंथ्स में कवर किया है. एंड एक होता है ना कुछ चीज़ों में टाइम लगता है तो लास्ट में इट्स ऑल वर्थ इट. तो आई एम वेरी श्योर एंड माई टीम इज ऑल्सो वेरी श्योर कि आप लोगों को गाना बहुत पसंद आएगा. एंड लेट्स about the label and the journey of the song as well. As I told you earlier, MFA Records for me is very special to me because being an artist, कुछ struggles market में ऐसे हैं जो आपको go through करना पड़ता है, and I believe in this fact also कि वो करना चाहिए. तो during the struggle period of my as well, I found out कि इतने सारे ऑलरेडी लेबल्स हैं, इतना सारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, मार्केट में है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो आई फाउंड आउट कि व्हाई नॉट टू ओपन माई लेबल ऑल्सो, जिसमें मैं अपने गाने भी बाकी सारे आर्टिस्ट के भी गाने प्रमोट कर सकते हैं, ओवरऑल 360 डिग्री हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ माई म्यूजिक फॉर ऑल रिकॉर्ड्स AKA MFA Records. As far as the song Neem is concerned, ये भी गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ यासिर सर. तो जब मैंने शिवराम सर से गाना लिया तो हम लोग थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में थे कि इसको किससे हम लोग गवाएं, मतलब हु इज गोना सिंग दिस सॉन्ग. तो उसमें माय पर्सनल ओपिनियन वाज टू पिक यासिर भाई, बट शिवराम सर कहीं ना कहीं बोल रहे थे भाई कुछ और ट्राई करते हैं. मैंने नहीं सर, गवाएंगे तो यासिर भाई से ही गवाएंगे. एंड फॉर्चुनेटली वो बहुत इट्स ऑल वर्थ इट. आई वुड से कि आप लोग
गाने को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है एंड आई होप कि आप लोग भी सब लोग देखें उस गाने को और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें सो या दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से Nice. So, देखिए, we have your family and friends as well. भाई, आंटी बहुत लड़का बहुत आगे चला गया सच में. Big hand for their family as well. Thank you, thank you. अच्छा, दूसरा सवाल है जो सबसे खूबसूरत लड़की है, सिंगल लड़की है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लड़की है. And Manmeet, do you ever think while shooting this song that it would turn into such a lovely treat for your fans and music lovers? आई थिंक इन्होंने मुझे गाना पहले सुनाया था. कितनी प्यारी आवाज है यार इसकी. Okay. अगला गाना इसी से ये जब गला खराब होता है तो आवाज अच्छी हो जाती है. राइट एग्जैक्टली है ना? मेरा भी गला खराब है. हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और गाना मैंने पहले सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा. दैट्स व्हाई आई एम द पार्ट ऑफ इट एंड गाना इतना अच्छा बन के आया भी है. तो यस. मनमीत, पिक्चर्स वहाँ आएंगी अच्छी. ओके. Okay. So, अब दूसरा सवाल स्वप्निल से. दैट्स इट. Ask one more question now. ठीक है, और भी कुछ बताना चाहे बताइए. कुछ सेट्स की बातें बताइए सेट पे. How about the association with MFR? Yes. See, I would want to say this thing. और मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि आसान नहीं होता है जब आप खुद नए एक सिंगर हो और आपको इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है और आप दूसरे किसी सिंगर को चांस दे रहे हो अपने लेवल पे और वो भी आते ही. लाइक आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड ये चीज़ देख के. तो या ये मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी बात. और ये कह रहे हैं कि और भी सिंगर्स को लेकर आना चाहते हैं. तो काफ़ी अच्छा इनका प्रोडक्शन है. अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचते, ये सोचते कि एक ऐसा लेबल बनाऊंगा जो कि सब कोई उस पे होंगे और यू नो पीपल विल लव इट. सो इट्स अ लेबल फॉर द पीपल. तो या तो सेट पे भी इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई नया प्रोडक्शन है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ. मुझे ऐसा लगा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड सेट ऑफ पीपल I had around me and I was working with them, even being the director. कि अगर आप बात कर लो, डायरेक्टर भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे. बाकी सारे लोग काफ़ी एक्सपीरियंस थे सेट पे. परेशानी की आपको किसी ने? नहीं, वही बता रही हूँ, एक्सपीरियंस थे तो कोई परेशानी नहीं आई गाइस. जतिन ने परेशानी की आपको? नहीं ये तो हॉट केक है ना अपने हिसाब से. तो परेशानी नहीं आई. थैंक यू. So, big hand. So, moving on. स्वप्निल, आपसे एक सवाल है. Having personally mastered this project and how that is released today, are you feeling any pressure or are you relaxed now that is the song is finally out? ऑब्वियसली रिलैक्स तो लग ही रहा है क्योंकि हम लोग ने काफ़ी टाइम दिन एंड रात हम लोग हर एक चीज़ डिटेल में देख रहे थे. हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में डिज़ाइन कर रहे थे. हमने मतलब मार्केटिंग पे, उस पर डिज़ाइनिंग पे, प्रोडक्शन डिज़ाइन पे, एडिट पे भी हमने काफ़ी टाइम डाला है. एंड आई थिंक आज रात को हम सभी अच्छे से, एटलीस्ट मी एंड अनुराग अच्छे से रात को सो सकते हैं. But it was really amazing working with especially शिवराम सर के साथ because हम काफ़ी उनके स्टूडियो में आए गए उनके गाने के लिए. And it was like a really good experience for me to work with Mr. Shivram sir and also for the of course with Yasser sir as well. Oh, power to you, man. Big hand. Okay, moving to Jatin, the hot cake. Jatin, bhai, what was your initial reaction when you first heard the song and how did that influence your performance? Hello. Working. Yeah. First of all, thank अच्छा you किया everyone. भाई. Thank you each and every member of media to come here. शाद भाई ने एक बहुत प्यारी बात कही थी स्टार्टिंग में. अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं. और ये हर चीज़ के लिए. Exactly. So thank you so much for coming. And back to you. क्या था भाई? सवाल ये था, what was your initial reaction when you first heard the song and how did that influence your performance? Okay. So I was shooting for my upcoming project. जब मुझे MF Records से कॉल आया तो they were like कि हम एक बहुत प्यारा सॉन्ग बना रहे हैं. They were very confident कि हम बहुत प्यारा सॉन्ग बना रहे हैं और जिसमें हमने यासिर भाई से गवाया है और शिवराम सर की कॉम्पोजिशन है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको भेजते हैं. आप सुनिए और हमें बताइए. I was like यार यासिर भाई का सॉन्ग है, शिवराम सर की कॉम्पोजिशन, मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे सुनना नहीं है, मैं आ रहा हूँ. सो बस मेरी पेमेंट्स का ख्याल रख लेना. ये मैंने ज़रूर बोला और इन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा उसका. सो
जब मैं सेट पे गया, जब फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुना, पहली बारी में बहुत खूबसूरत लगा। जो अच्छी चीज़ होती है वो पहली बारी में समझ आती है, एंड सॉन्ग वाज लाइक ब्रिलियंट। फिर उसके बाद हमारे भाई से मिले हम। अच्छा, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, मैं लाइक शिवराम सर को तो मैं पहले से ही जानता था, लाइक यासिर भाई के लिए, बट जब मैं अनुराग भाई से फर्स्ट टाइम मिला सेट पे तो आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड। मतलब ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये बहुत बेहतरीन सिंगर भी हैं, ये लिरिसिस्ट भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, अच्छा एक्टर भी हैं। सो आई वाज लाइक यार, मतलब हम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं खड़े हैं, सबका जॉब खाने का दम रखते हैं। सर आप एंकर तो नहीं है ना? ये एंकर भी कर लेंगे। नहीं यार प्लीज। सो या थैंक यू। थैंक यू सो मच जतिन। अच्छा, अब बात हुई है कंपोजर साहब की, तो शिवराम सर आपसे एक सवाल है। कैन यू वॉक अस थ्रू योर क्रिएटिव प्रोसेस व्हेन कंपोजिंग नेम एंड एसोसिएशन विद अनुराग एंड टीम? नमस्कार एवरीवन। ये गाना 2015 में कंपोज हुआ था। इसके बाद काफ़ी गाने कंपोज हुए और एक गाना शायद आप लोगों ने सुना होगा, नीम नीम, कभी नीम नीम कभी शहद, राइट? ओके, सो ये कॉन्सेप्ट से हमने नीम नीम लिया था, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस, हमारा जो 15 से वो काफ़ी स्ट्रेस वाला पीरियड चल रहा था, तो वहाँ पर ये गाना कंपोज हुआ। प्रीत की बात समझे ना, जो शहद से प्यार आ रही, और ये बनारस में बैठे बैठे किसने लिखा, आप मानोगे नहीं, इस गाने को मैंने बाइक पे कंपोज किया है, अंधेरी से कांदीवली जाते हुए। और मेरे ख्याल से ये गाना, आपको पता है बहुत बारिश हो रही थी और मैं रास्ते में जा रहा था, उनका फ़ोन आया, तब मैं बाइक पे ये ईयरफोन लगा के जाता था, तो उन्होंने बोला शिवराम सर एक बहुत अच्छे शब्द आए हैं, नीम नीम जग सारा करता की बात है। एक्चुअली क्या होता है, जब अच्छे शब्द होते हैं ना तो अच्छी धुन अपने आप में बन जाती है, राइट? तो मैंने बाइक पार किया, बारिश भी हो रही थी साइड पे, और मैंने बोला कि फिर से सुनाइए क्या है, बोला नीम नीम जग सारा करता की बात है, प्रीति की बात जो समझे वो शायद से प्यार आ रहे। 2 मिनट में मैंने वहीं खड़े खड़े कंपोज करके मोबाइल में ऐसे रिकॉर्ड किया और उनको वहां भेज दिया। उन्होंने गाना सुना और फिर बोले कि शिवराम सर ये बहुत अच्छा कंपोजर हो रहा है। इसके बाद ये गाना आप मानेंगे नहीं, टी सीरीज, टाइम ऑडियो और ब्लॉकबस्टर प्रोडक्शन, और लास्ट में ये गाना अनिल शर्मा ने भी सुना। जब गदर की बात हो रही थी तब उन्होंने बोला कि शिवराम थोड़ा लेट हो गए हम, लेकिन इसको अपने टू में हम लोग यूज कर सकते हैं। शायद ये अभी बता रहा हूँ आपको अनिल शर्मा आपके 2 बना रहे हैं अभी दूसरी, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि ये गाना बहुत अच्छा है, लेकिन रखो तुम, इस गाने को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे यूज करेंगे। बाकी की जितनी कंपनियों ने मेरे पास ये गाना मांगा, लेकिन मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं वो किक नहीं लगी कि उनको दूं गाना। मुझे लग रहा था बहुत अच्छा गाना है और अच्छी जगह पे जाए। जब अनुराग ने पहली बार कॉन्टेक्ट किया, डिस्कशन हुआ गाने का, तो बोला सर हम ये गाना करते हैं। मैंने बोला ठीक है करते चलो। देखो क्या होता है, खाने वाले का नाम जैसे होता है गाने गाने पे लिखा है, गाने गाने पे लिखा है रिलीज करने वाले का और क्या होता है, कई बार कोई चीज आपकी बिक जाती है, लेकिन कोई बंदा खुद लेके जाता है ना बेचने के लिए, तब वो चीज अच्छी होती है। और इसने बोला कि नहीं मैं निकालूंगा इस गाने को। बाकी लोगों ने बोला गाना दे दो हम निकालेंगे, इसने बोला कि सर हम साथ में करके निकालेंगे गाना। तो वो कॉन्फिडेंस आया मुझे कि नहीं ये गाना सच्ची में बाहर जाएगा अच्छे से। नहीं तो कई बार कैसा होता है, कई गाने आप दे देते हो कंपनी को, गाना आता है नहीं आता पता आता कुछ नहीं होता गाने का, और अच्छी कंपोजिशन दब जाती है। तो इसने बोला अनुराग जी ने बोला कि सर हम साथ में काम करेंगे और इस गाने को आगे लेके जाएंगे, और फिर हमने डन किया ये गाना इस तरह से भाई सबका साथ सबका विकास, जोरदार। थैंक यू। अतिशय हमारे साथ है, वेंचर कैपिटलिस्ट। अतिशय 2 शब्द आप ही कहें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। Sure. So basically, I am already running my own company, and that is also for everyone. Basically, EdTech platform है वो. And जब मेरे को MFA के बारे में बताया गया, तो सबसे मेन चीज जो मेरे को अट्रैक्ट करी, मैं ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं हर किसी के हेल्प कर पा रहा हूँ। सो बिकॉज आई ऑल्सो नो कि इस इंडस्ट्री में ना किसी भी एक ऐसे सिंगर का उठना जिसके पास टैलेंट है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सो MFA एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आया जहाँ पे वो ऐसे टैलेंट को उठाकर ऊपर करेगा जो कि एक्चुअली मार्केट में दिखना चाहिए।
So this is the main reason जिस वजह से मैंने इन्वेस्ट करना चाहा in MFA Records, right? Because I know MFA आने वाले टाइम में I can guarantee कि यूथ को और जो टैलेंट मिसिंग है मार्केट में उसको जरूर उठाकर ऊपर लेके आएगा. So this is the main reason that I done. Wow. So thank you Anurag sir. To you for having us on board. Thank you Anurag sir for making such a good platform for ये everyone. बताया जा रहा है कि असली प्रोड्यूसर कौन है. यानी पेमेंट उधर से लेनी है. आप लोग कभी सर कभी भाई भाई कैसे हो जाते हो मतलब ये अंदर की बात है, अंदर की बात. ओके, थैंक यू अतिशय, थैंक यू. गोइंग ऑन, विशाल सर देखिए, विशाल सर म्यूजिक प्रोड्यूसर है और सच बताएं तो इन्होंने ही शेप दिया है इस गाने को, तो बिग हैंड को विशाल सर. ये बताइए कि भाई ये जब आपने पहला गाना आपने सुना या देखा तो पहला ख्याल क्या आया आपको? एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ हाँ और जी। प्रोडक्शन मेरा वहाँ पर है. मेरे पास स्क्रैच आया सॉन्ग का और सुनते ही सर को मैंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी 4 सॉन्ग का वर्क चल रहा था. सबको मैंने साइड करके फर्स्ट ये स्टार्ट किया कि सबसे पहले इसको करते हैं. इतनी पॉजिटिव वाइब है सॉन्ग की कि ये सॉन्ग हम इन फ्यूचर मूवी में देखना चाह रहे हैं. तो फर्स्ट हमने इसको करके देन मैं स्पेशली इस सॉन्ग के जो शिवराज सर की सपोर्ट है कि मैं मुंबई शिफ्ट हो गया. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार ताली. ये सारे जो फ्रंट स्टेज में हैं और इसके अलावा जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे विजय शुक्ला सर एंड रवीरा भारद्वाज. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड सबसे पहला सवाल आपसे बनता है, गाना सुनने के बाद जो आपने टाइटल रखा है नीम नीम, ऐसा लगता है क्यों ना शायद हो, क्योंकि इतना मिठास है, इतनी मेलोडी है गाने में. सही में सबने काफी एंजॉय किया, हर किसी ने तारीफ किया. इसके बावजूद आपने नीम नीम रखा. नीम प्रतीक है कड़वाहट का, क्या कहेंगे? कड़वाहट के ऊपर शहद है, राइट. और कंपोजिशन भी आप देखेंगे बहुत मीठा है. तो टाइटल तो मेरे ख्याल से आपने चूज किया है. आपने सर हम दोनों आपने चूज किया. लेकिन ये शब्द इतना अच्छा है ना कि कोई भी इसको अच्छे से सुन सकता है गाने को और एंजॉय कर सकता है. रही बात कंपोजिशन की तो 2000 से 2015 का ऐसा दौर चला है कि गाने सिर्फ शब्दों पे आते थे, कंपोजिशन नहीं होती थी उसमें, सिर्फ रैप और ये वो सब चल रहा है. सो लोग अभी धीरे धीरे उस चीज़ से ऊब रहे हैं और वापस वो मेलोडियस जोन में जो 70-60 का दौर था उसमें आ रहे हैं वापस. अभी के गाने देखेंगे आप तो बहुत मेलोडियस गाने आ रहे हैं, कंपोजिशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, राग बेस्ड कंपोजिशन भी आ रहे हैं. तो इस हिसाब से ये मेलोडियस कंपोजिशन ये लंबे समय तक चलने वाला कंपोजिशन है और हिसाब से हमने इसको कंपोज किया है. कितना वक्त लगा आपको इस गाने को बनाने के लिए, किस तरह का अनुभव रहा और क्या उम्मीदें हैं? बहुत लंबे समय से इसे आपने अपने बैंक में बहुत ही संभाल के रखा था, तो क्यों इनको दिया, क्या कारण है? और इसके बाद इसका जो आप भविष्य देखते हैं इस गाने का, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसे कंपोजिशन होते हैं ना, वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है. आपके फास्ट गाने होते हैं ना, वो शायद मेरे ख्याल से 2-4 महीने गाने बजते हैं, डांस जहाँ पर होता है वहाँ बजते हैं, सीजन जैसे चेंज होता है वो गाना दब जाता है. लेकिन ये ऐसे मेलोडियस गाने आज भी हम लोग 70-60 के गाने क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज देयर वाज अ मेलोडी. उस गानों में मेलोडी थी, उस गानों में राग थे, उस गानों में एक अच्छी कंपोजिशन थी. तो ऐसे गाने जो होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, सालों साल तक लोग सुनते हैं. और पहले भी बताया मैंने कि काफ़ी सारे लोगों ने इस गाने को मांगा है मेरे पास, लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ क्लिक हुआ. जैसे बताया इन्होंने कि गाने पे लिखा है प्रोड्यूसर का नाम. तो ये गाना
इनके साथ ही क्लिक हुआ कि यहाँ इस गाने को ही पहले करेंगे, क्योंकि ये गाना ऐसा है ना कि शायद इस गाने से एक कंपनी को भी बूस्ट मिल सकता है और इस कंपनी में जो भी काम करते हैं, इस गाने से जो भी जुड़े हैं उनको भी शायद एक अलग नया बूस्ट मिल सकता है। अनुराग जी, आपसे सवाल है, आप खुद एक बहुत ही टैलेंटेड बंदे नजर आ रहे हैं हमको, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं आप, आपकी कंपनी भी है, आप चाहते तो खुद इस गाने को गा सकते थे, इतना मेलोडियस सॉन्ग है, क्या कारण था आपने यासिर जी को चुना? सर एक चीज़ होती है कि अगर हर बंदा हर चीज़ कर रहा है तो फिर बाकी क्या करेंगे, एंड ये एक चीज़ है। दूसरा ये था कि मैंने जैसे बताया कि मैं यासिर भाई का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। एक गाना आपको सुन के पहले नज़र में उसका टेक्सचर पता चल जाता है कि ये गाना एग्जैक्टली कौन गाएगा या किसके लिए बना है। तो जब मैंने ये शिवराम सर से पहली बार गाना सुना तो मैंने पूरा गाना भी नहीं सुना, मैंने आधे गाने में आई मेड माई माइंड कि ये गाएंगे तो यासिर देसाई गाएंगे। तो इस तरीके से हमने फिर डिस्कशन किया एंड हमने थोड़ा सा स्क्रैच गवाया भी, तो द सॉन्ग वाज एप्ट फॉर हिम। मैं अगर गा देता तो हो सकता है उतना बूस्ट ना मिल पाता जितना यासिर भाई के गाने पे मिल सकता है। तो चलने के लिए पहले किसी की उंगली पकड़नी पड़ती राइट। एमबीए ने जो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसका भविष्य किस तरह से देखते हैं आप, और इससे लोग क्यों और कैसे जुड़ेंगे? टू काइंडली करेक्ट यू, इट्स MFA एज इन म्यूजिक फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। MFA का अगेन एज आई टोल्ड, MFA का सिर्फ मोटिव आपका टैलेंट डाल नहीं देना है प्लेटफॉर्म पे। हम आर्टिस्ट को ओवरऑल 360 डिग्री, ही इज़ माई बिजनेस हेड, तो हम दोनों जब प्लेटफॉर्म बना रहे थे तो हमने यही आई गेस मोटिव हमने ये रखा था कि हम आर्टिस्ट को 360 डिग्री डेवलप करेंगे, राइट, 360 डिग्री डेवलप करेंगे, विच मीन्स कि आपके ऑडियो से लेकर आपके विजुअल्स तक, आपके गाने तक हम आपको हर चीज़ का प्रॉपर प्रोफेशनल से सजेशंस दिलवाएंगे। आपके गानों को एक बहुत 10x10 का प्रोडक्ट बनाएंगे, देन आपके गाने को हम लोग पुश फॉरवर्ड करेंगे इनटू द मार्केट। तो उससे क्या होगा, आर्टिस्ट को एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है, क्योंकि लेबल पे सिर्फ गाना दे देने से आई डोंट थिंक कि कुछ होता है एज फार एज आई बिलीव। तो यह हमारा मोटिव ये है कि सिर्फ पुट अक्रॉस ना करके 360 डिग्री एक ओवरऑल एक टैलेंटेड आर्टिस्ट को बूस्ट करना मार्केट में। मनमीत, आपसे सवाल है, आप वैसे तो बहुत खूबसूरत है, गाने में और भी सुंदर लगी है, ये जो रोल एक तरह का गाना एक पूरी कहानी बता रहा है, जहाँ पर आप धोखा देकर चले जाते हैं, तो लोग आपको याद करेंगे, इस बारे में आपके क्या रिएक्शन थे? सर पता नहीं ये किस गाना मैंने पहले भी किया था, उसमें भी मैं धोखा दे रही हूँ। मतलब भोली सी सूरत है, फिर भी लोग पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सोचते कि मैं धोखा देने वाली लड़की हूँ। ओके, सो बेसिकली इसमें लेकिन मैं धोखा नहीं देती हूँ, वो थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मुझे फ़ोन आता है, सारी लड़कियां यही बोलती हैं सर। अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे गाइस। मैं गलत भी थी, वो फैमिली गलती लड़कों की होती है। जतिन, आपका अनुभव कैसा रहा शूटिंग के दौरान, खासकर मनमीत के साथ काम करने के? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, मैं इनसे पहले कभी मिला नहीं था, फर्स्ट टाइम हम सेट पे मिले, इनका काम मैंने पहले देखा है एंड जब इनके साथ काम किया, एक अच्छा एक्टर जो होता है सामने से आपको वो हेल्प करता है जिसकी वजह से आपका सीन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है एंड सो पता लग जाता है, शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस। मयूर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कपूर साहब के लिए ऑब्वियसली आपने जैसे बताया गाने की जो बोल है, जाहिर है जो युवा फिल्म का गाना है, सबसे पहले तो उसकी याद दिलाता है। वो भी एक मीठा गाना था जो माधुश्री ने बहुत अच्छी तरह गाया था, यहाँ पे ऑब्वियसली जो शब्द है वो यासिर देसाई की आवाज़ में है, एक अनोखा हमें अंदाज सुनने को मिल रहा है उनकी आवाज़ में। और ऑब्वियसली आपने इस गाने की जर्नी भी बताई कि कैसे ये पहले अनिल शर्मा ये गदर 2 के लिए था, तो सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की, आपने अनिल शर्मा और सनी देओल के टाइम के लोग के हाथ से ये गाना लिया। तो मेरा सवाल ये है कि इसे 2015 से ये गाना बना हुआ है, और आपको क्या लगता है कि क्या अगर ये गाना फिल्म में जाता तो शायद जिस तरह आप चाहते थे, क्या उस तरह से ये फिल्म में निकल के आता था या नहीं? डेफिनेटली आता, अगर किसी भी फिल्म में जाता है गाना तो अच्छे से निकल के आता हो, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ कि शायद कई कंटेंट ऐसे होते हैं अच्छे जो जब तक आप उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो लास्ट तक, तब तक आपको पता नहीं चलता कि ये मार्केट में आएगा कि नहीं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, मेरी काफ़ी सारी फिल्में आई हैं ऐसी जिसमें मैंने काफ़ी गाने बना के दिए हैं, लेकिन वो फिल्में आज तक नहीं आई, वो कंटेंट फिर दब जाता है, अच्छी चीज़ें रह जाती है, राइट। तो अगर मेरे पास बंदा आता है या कोई ऐसा प्रोड्यूसर आता है कि सर इसको हम साथ में काम करके आगे लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली आई विल वर्क विद देम, राइट। और अनुराग में मुझे वही चीज़ लगी
कि ये एक सही में गाने को आके लेके जाए। दूसरी क्या बात है, कंपटीशन इतनी सारी है आज म्यूज़िक को लेकर। आप देखते हैं रोज़ यूट्यूब पे कम से कम 2 से 2,500 गाने आते हैं। आपका गाना कहाँ है आपको पता ही नहीं है, इतना कंटेंट आता है मार्केट में। तो आपका गाना कहाँ, प्रॉपर मार्केटिंग होगा इस गाने का, प्रॉपर सिंगर से गवाएंगे, प्रॉपर इसका म्यूजिक अरेंजमेंट्स होगा, इसका प्रॉपर मिक्सिंग होगा, इसका प्रॉपर वीडियो बनेगा। ये जब तक आपको नहीं लगता तब तक मैं गाना देता नहीं हूँ किसी को। और वजह यही है कि अच्छी चीज़ दब जाती है अगेन। तो मुझे लगा अनुराग की बातों से, जब हम पहली बार मिले कि सर हम गाना करना चाहते हैं, तो हमने यही डिस्कशन किया भाई किस लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे गाने को, क्योंकि अगर वो लेवल पे गाना नहीं गया तो गाना वापस वहीं के वहीं रह जाएगा। सो उस हिसाब से हमने प्लान करके साथ में ये गाना, इस गाने को आगे लेके आए हम लोग। मनीष जी, आपके करियर में जो अभी तक जैसे आपका इंट्रोडक्शन किया जाता है कि डिम्पल्स फ्रेंड फ्रॉम शेरशाह, तो क्या लगता है कि इस सुंदर गाने के बाद आपकी खुद की एक पहचान इस गाने द्वारा बन पाई? एब्सोल्युटली सर, उसमें तो डिम्पल्स फ्रेंड थी ना, यहाँ पे आई मीन द मेन। सो या उसकी एक अलग खूबसूरती है क्योंकि वो एक फिल्म है और ये गाना है। गाना मतलब लोग आई थिंक ये गाना गाएंगे तो उनको मैं याद आऊँगी, वो मेरा वीडियो। सो या पहचान तो बनेगी। ऑब्वियसली जो अभी ये इस कॉन्फ्रेंस में शुरू से अंत तक बार-बार आपको हॉट केक कहा जा रहा है बाय द पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लगते हैं मैं पूछा था अगर ये आपको हॉट केक कहते हैं, सॉरी हु, अगर ये आपके दोस्त एंकर जो आपको हॉट केक कहते हैं तो आप इन्हें क्या कहते हैं? चेरी ऑन द टॉप? नहीं भाई, ये पता नहीं है कहाँ से आज इनके मुंह से ही शब्द निकल गया भाई, ऐसे ऐसे शब्द मारे। मतलब आज पहली बार ये शब्द निकले, आप दोनों एक दूसरे को कुछ नेम नहीं देते? नहीं। फिर आपके करियर में इस गाने की क्या अहमियत है? आई थिंक आपके करियर में जो भी काम आपको आता है उसकी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है, वैल्यू रहती है। यू नो हर एक स्टेप की एक अहमियत होती है। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। मैं हर काम को ईमानदारी से करता हूँ, जो भी आता है सामने, जो भी अच्छा लगता है दिल को। एंड उसकी यू नो फर्स्ट आई हैव टू लाइक इट, आई हैव टू लव इट। अगर मुझे पसंद आ रहा है मैं कर रहा हूँ, और डेफिनेटली वो चीज़ आपको आगे लेके जाती है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, आप दोनों युवा हैं, जैसे कंपोजर साहब ने कहा कि इस दौर में तरह तरह के म्यूजिक सुनने मिलते हैं, खासकर अगर हिंदी सिनेमा में देख या इन द प्राइवेट स्पेस, तो कई बार उसमें शायद थोड़ा लाउड म्यूजिक, रैप वैप जिसका अपना एक स्वाद है, लेकिन वो कितना उस जॉनर के रूट से कनेक्ट करता है, आई थिंक उस पर हमेशा डिबेट हो सकता है। बट एज यूथ आप कैसे देखते हैं जो म्यूजिक रहा है पिछले 5-7 साल में? तो अक्सर कहते हैं कि एक हिंदी सिनेमा का जो डिक्लाइन हुआ है, वन ऑफ द रीजन इज दैट कि गुड म्यूजिक आता नहीं है। तो बट यू गाइस बीइंग यूथ, आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली अगर आप देखेंगे जो पुराने ज़माने के सॉन्ग्स थे, लाइक जो हमारे किशोर कुमार साहब के टाइम के, या यू नो उनकी तरह और भी थे, उनका मुकाबला आज कब कोई म्यूज़िक नहीं कर सकता, ना कभी हो सकता है। वो समझो वो चीज़ उस टाइम भी ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा है, आगे भी ज़िंदा रहेगी। लेकिन जो आजकल म्यूज़िक आ रहा है, ठीक है वो थोड़ा टाइम पास के लिए ठीक है, थोड़ा सुन लेते हैं, लेकिन वो आपको इमोशनली मूव नहीं करता है, यू नो मोटिवेट नहीं करता है, इंस्पायर नहीं करता है। सो ठीक है, आज की यूथ थोड़ा बहुत लाइक कर रही है उसको, बट डेफिनेटली उन सॉन्ग्स की वैल्यू अलग ही है। सर आई एम अ पंजाबी, मुझे पंजाबी गाने जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है मुझे बेहद ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर एक टाइम होता है शाम के बाद ना, आपका थोड़ा आराम वाला मूड होता है, जब आप वैसे गाने नहीं सुनना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो इस तरह के गाने। और अगर मुझसे कभी कोई ये पूछेंगे कि आपका फेवरेट गाना क्या है, तो मैं कोई वैसे गाने को नहीं बोलूँगी दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। एक वैसा गाना रहेगा, सॉफ्ट सूदिंग सा गाना, जो आपको हमेशा याद रहेगा। और आई थिंक फेवरेट गानों में हम वही सारे गाने बोलते हैं, तो शायद ये नीम नीम इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो लोगों का फेवरेट गाना हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वंडरफुल सॉन्ग, आप दोनों आजकल कौन सा गाना लूप पे सुनते हैं? मैं ऑनेस्टली आई किड यू नॉट, मैं अभी रेडी भी हो रही थी, आई वॉज लिसनिंग टू नीम नीम। मैं रास्ते भर में नीम 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 सुनते हुए आई हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस सॉन्ग आई थिंक कुछ इस तरह इज़ माई फेवरेट। अभी अगैन पुराने गानों की बात करूँगी मैं, आजकल के गाने मैं भूल गई, लिरिक्स भी नहीं पता, कुछ नहीं मालूम मुझे। मैं हाँ पंजाबी गाने बहुत ऑफ कोर्स, बट देन वो पार्टी वाला कीप इट असाइड, नॉट द फेवरेट।
बट अगेन और मेरा है मैं तेनू समझावा की राहत फ़तेह अली खान जी का, तो मैं उस तरीके के गाने सुनती हूँ। ये पंजाबी गानों के भी लिरिक्स इजी है, गुच्ची, अरमानी, कुछ। रिवॉल्वर, मैं तेनू बंदूक, समझावा कि- गाड़ी, हाँ इजी है यार, इजी है। मैं वही चीज़ कही है कि आई नो बट फेवरेट नहीं बोल हाँ, सकते, पर मैं तेनू समझावा कि इज लाइक इट्स अ पंजाबी सॉन्ग यस आल्सो। यस यस। पंजाबी भी है, सॉफ्ट भी है। जतन, आपके लूप में क्या चलता है आजकल? सी आई एम अ बिग फैन ऑफ अरिजीत सिंह साहब, एंड उनका तो बस उनके सारे सॉन्ग सुनता रहता हूँ, लूप पे वही चलता रहता है, कार में हूँ, कहीं हूँ, ऑफिस हूँ, काम कर रहा हूँ, बस। जतिन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यारिया वन से आपकी इमेज रही वो चॉकलेट बॉय की रही, यहाँ पे भी आपको हॉट केक कहा गया, लेकिन इस गाने के लिए आपकी क्या प्रिपरेशंस थी, हम जानना चाहेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस गाने की मेरी कोई प्रिपरेशन थी नहीं, ये केक और चॉकलेट बिकॉज आई वॉज लाइक मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैंने पहले भी बताया कि मैं डायरेक्टली सेट पे गया जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग सुना था, बिकॉज आई वॉज बिजी इन वन ऑफ द शूट, तो वहीं सुना और वहीं जो डायरेक्टर साहब की जो गाइडेंस थी उसके हिसाब से शूट की। सो आप लोगों को अच्छा लगा ना? बहुत बस बढ़िया। ठीक। जतिन आप यारियन वन का पार्ट थे और Yeah. यारियन टू आने वाली है, उसका ट्रेलर, आपका उसके प्रति क्या रिएक्शन है? See, I am not a part of Yariyan 2, but definitely it is gonna be very big hit. Not because Yariyan 1 hit थी इसलिए Yariyan 2 hit होगी. See, I've worked with this talented director Divya Khosla ma'am, who was a part of Yariyan 1 and who is a part of Yariyan 2 as well. She is very dedicated, very hardworking, very passionate about the craft of filmmaking. और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनकी डेडिकेशन है उस वजह से मैं बोलूँगा कि यारिया 2 भी हिट रहेगी। और आप देखें यारिया 1 से लेके अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं सारे कमर्शियली सक्सेसफुल रहे हैं। द रीज़न इज़ हर डेडिकेशन, एंड सो दिस इज़ गोना बी हिट, एंड सॉन्ग्स तो ऑलरेडी हिट जा रहे हैं। अनुराग जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आज कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल है, जो सेलिब्रेशन के स्टार हैं यासिर साहब वो नज़र नहीं आ रहे, आप उनको कितना मिस करते हैं? मैंने सबसे पहले जब मैं एंटर हुआ तो मैंने यही बोला कि शिवराम सर को कि सर यासिर भाई इज़ नॉट एबल टू मेक इट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सैड फील करेंगे, क्योंकि आई हैव बीन अ फैन ऑफ यासिर भाई सिंस वेरी लॉन्ग, बट उनका आज इस इवेंट में ना होना ऑब्वियसली डेफिनेटली हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि गाना उनका है और ड्यू टू सम अर्जेंसीज ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट टुडे, बट या हम लोग बहुत उनको मिस कर रहे हैं। Thank you. थैंक यू। Done? Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much everyone for being here. Big hand, big hand. Thank you so much. और एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा स्वप्निल और अनुराग के लिए, क्योंकि फैमिली यहाँ पे आई हुई है, और अंकल आंटी मैं सीरियसली हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात के कि हम जो बच्चे जो भी बन पाए हैं या कितने भी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।